Hello students, in this class today we shall be looking for all the exercises of the chapter Unke Munke Temputu, which is written by Sigurun Shrivastava. So the previous video what we had, in which we have been completed all question answer based on the chapter question number 1 to 4, then complete the following and appreciating the text. Okay, now after that we shall be looking for the exercises. You can see the exercises here, which is given on page number 7. Okay, the exercises which is given on page number 7 shall be looking in this video. So without any delay students, let us begin the class. So on page number 7, grammar and usage, it says we have learned how to identify different kind of noun, common nouns, proper noun, collective and abstract nouns. Here you have to find the same. Window, that is already written, it is common noun. Fleet, which is what, collective noun, right? CL. And safety is common noun. Horlicks is proper noun. Audience is collective noun. Speaker also common noun. Honesty abstract noun. Ticket, which is common noun. Okay, then honesty, which is abstract noun. Ticket common noun. Alto proper noun. Series also collective noun. Okay, now see, we have learned that the use of a and when we refer something to the first time and when we refer to any one thing, we use a before words that begin with consonants and before words that begin with the vowel. We already know that. What about the, that we use the when we refer to something and when we know exactly which thing we are talking about. So see that example exercises is given. Add ye and or the to complete these sentences. First also is already given. Now let us talk on second one. He came home an hour ago. The stadium is packed for today's match. I like the painting. I like the painting, but the colors are a little dull. Do you have a raincoat or an umbrella? ठीक है, this is the answer of this. Now let us go for the next. Let's see all the answers I have written here. Collective noun, abstract noun, proper noun, collective noun, common noun, abstract noun, common noun, proper noun, collective noun. Then an, the and ye and an. Sorry. Okay. After that, one more exercise is based on the same thing, that we use the before a noun for other reasons. When we refer to something of which there is only one, the sun, we climbed up the boundary wall. To say which person we are referring to by mentioning their job or something special. This is Mrs. Grover, the principal. These things we have already uploaded on my channel. You can see and watch the explanation of things. And when we refer to a special name, we use the, like river, mountain, and so on. And also when we use the with a noun which means the whole कास्ट, ठीक है, लाइक द कैमल. सो यहाँ पे जो कैमल है वो पूरे कैमल जाति को रिप्रेजेंट करता है. द नेम, पूरे नेम ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एट द करेक्ट प्लेस. आपको जो द है ना, ये करेक्ट प्लेस पे यूज़ करना है. फर्स्ट इज ऑलरेडी गिवन. दूसरा देखते हैं. अ सोलर इक्लिप्स बिकम्स व्हेन द मून comes between the earth. When the moon comes between the earth. ठीक है. दूसरा देखेंगे. why is there is no water in the pond. ठीक है. female lion usually hunt for food, not the male. 5 देखेंगे. flowers of banana tree is often cooked. यहाँ पे द फ्लावर्स ऑफ बनाना ट्री इज़ ऑफन लाइक्ड अ वेजिटेबल. शी इज़ निमिता द फेमस सिंगर. तो ये इसका आंसर था. जो ग्रामर और फन है ये आप खुद ही ट्राई करिए. ठीक है, ट्राई योर सेल्फ.
और इसके आंसर मैंने यहाँ दे रखे थे जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं वर्ड्स इन यूज़ के बारे में। तो देखिए, लुक एट दिस वर्ड, डिम लाइट और जेंटल ब्रीज के बारे में बात कर रहा है। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं अपोजिट थिंग्स के बारे में बात कर रहा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं बेटा, द का यूज़ कहाँ पे आप करिएगा। ठीक है, ठीक है। अब वर्ड्स इन यूज़ में आप ये देखिए, क्वेश्चन है वर्ड्स इन यूज़ का, मैच द करेक्ट एडजेक्टिव्स एंड द नाउन। तो सबसे पहले आप मैच कर लीजिए। देखिए, एडजेक्टिव है और यहाँ पे नाउन है। ठीक है बच्चों, तो सनी के साथ डे होगा सनी डे, लाउड, लाउड के साथ नॉइज़ होगा लाउड नॉइज़, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी होगा, करेक्ट आंसर होगा हैवी रेन, और बैड हैबिट। तो चलिए देखते हैं अब इसके अकॉर्डिंग आपको फिल क्या करना है। अब वी हैड अ हैवी रेन, यहाँ पे आप हैवी रेन लिख दीजिए। तीसरा है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आंसर्स लिख दिए हैं, आप ये देखिए, जस्ट मिनट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, वी हैड नाउ दैट वी हैव डन, एवरी मॉर्निंग जेबा हैज़ अ सैंडविच एंड अ कप ऑफ, देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ऑफ लिखिएगा। नेक्स्ट है, आवर मैथ्स टीचर आस्क्ड अस अ क्वेश्चन बट नन ऑफ अस न्यू, करेक्ट आंसर लिखिएगा यहाँ पे, अभी आपने ऊपर देखा करेक्ट आंसर। फोर्थ फाइव्थ देखेंगे, आई द डैश हैव कॉज्ड फ्लड, तो हैवी रेन, डैश हैव हैवी और रेन यहाँ पे लिखिएगा। सिक्स है, दे ऑलवेज कम लेट टू स्कूल, इट इज़ अ वेरी बैड हैबिट। सो इस तरह से हमने आंसर कंप्लीट किया बच्चों। अब हम लोग देखेंगे एंटोनिम और सिनोनिम। सो स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, ये जो सी का आंसर है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दे भी रखा है। अ सोलर सिस्टम एक्लिप्स हैपेंड व्हेन द मून और फिर इन द अर्थ, और फिर वाई इज द नो इन द पॉन्ड, फिर द फीमेल लाइन, और फिर यहाँ पे द मेल, और फिर द फ्लावर, ओके, और लास्ट में द फेमस। और अब इसके बाद ग्रामर फन तो आपको खुद ही करना है, स्ट्रॉन्ग टी, और ये देखिए ये भी फन मैंने आपको पहले से बता दिया है। और नेक्स्ट देखते हैं, तो ये तो इसका ही है दैट वी हैव डन। ये अभी बी पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, द फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, यू मे नीड टू चेंज द फॉर्म ऑफ सम ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, अब देखिए यार, लेसन द पेन, लेसन मतलब होता है कम करना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका उल्टा लिखना है तो इंक्रीज द पेन लेंथ लिख सकते हैं, इंक्रीज द पेन। स्टार्ट द रेस, आप यहाँ पे लिख सकते हैं फिनिश द रेस। ठीक है, यहाँ पे आप फिनिश लिख सकते हैं। एंटर द स्टेडियम, ठीक है, एंटर द स्टेडियम के एग्ज़िट भी हो सकता है, और यहाँ पे लीव, जो आंसर है वहाँ पे लीव दिया हुआ है, लीव द स्टेडियम। इंसर्ट द क्लिप, रिमूव द क्लिप। ठीक है, रिमूव लिखिए। स्कैटर द पेपर और appeared it appeared suddenly, it vanished suddenly, और it scattered the paper, so scattered का आप यहाँ पे गैदर लिखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर इंक्रीज, फिनिश, लीव, रिमूव, गैदर और वैनिश। अब यहाँ पे जो देखिए वोकैबुलरी एक्टिविटीज़ है, वोकैबुलरी एक्टिविटीज़ भाई पेयर में करना है तो ये आप खुद से करिए। और स्पीच प्रैक्टिस में देखेंगे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस अलाउड, इसका जो एक्सरसाइज है, ये जो द है ये लिसन है, लिसन करिए और सुनिए। ठीक है, ये भी वर्क इन पेयर में करना है, तो ये आप जो रोल प्ले है ये आप ट्राई टू वो सॉल्व योर सेल्फ। वोकैबुलरी में देखिए, वोकैबुलरी एक्टिविटीज़ में जो आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर ये है, चैंटेड, आस्क्ड, हिज, जो कॉल्ड, ममेल्ड, शाउटेड एंड स्टटर। अब देखिए पंक्चुएशन में कॉमा देना है, तो यहाँ का ये जो आपके क्वेश्चन है बच्चों, ये आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको सिर्फ कॉमा यूज़ करना है, तो इसके आंसर्स मैंने यस दिया है। देखिए यस के बाद कॉमा फर्स्ट में, और फिर यहाँ पे पोस्टर आफ्टर, यहाँ पे साइकिल आफ्टर, स्विमिंग आफ्टर एंड देन नो आफ्टर। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स में अनीता आफ्टर, राहुल आफ्टर, और सिक्स में स्मॉल आफ्टर। ठीक है, अब ये राइटिंग है, तो राइटिंग में कह रहा है कि इमेजिन दैट यू आर मिसेस ग्रोवर, राइट अबाउट व्हाट पैराग्राफ, व्हाट हैपेंड द नाइट रोहन एंड मक एंटर्ड योर गार्डन इन अ पैराग्राफ यूजिंग दीज हिंट्स। तो ये हिंट्स आपको यूज़ करना है पैराग्राफ में। ठीक है बच्चों, तो आप ये देखिए कि इट इज़ रिटन हियर दैट आई वॉज सडनली वोक अप by the sound of my dog barking very loudly. I could not understand what was wrong. I tried to listen but heard nothing.
My dog kept pulling me towards the back door, though I was feeling a little afraid. I decided to find out for myself. So I switched on the light, opened the back door, and stepped out. As I peered into the garden, there was a sudden movement near the banyan tree. I threatened to arrest my dog if the intruder did not answer. Who do I see? But Rohan, a boy, lives in my neighborhood. He came out and told me that he was running around my banyan tree at midnight as he badly wanted table tennis set. I did not know what to say. I patiently heard what he had to say. Seeing he is understood, I did not scold him but simply allowed it to complete his remaining rounds. I went inside to watch him through the window as he chanted something and ran around the banyan tree. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका राइटिंग स्किल था जो हमने कंप्लीट किया। तो इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट था, ये वीडियो, इसमें हमने सारे एक्सरसाइजेस आपकी बुक के कंप्लीट किए और जो भी फर्स्ट वीडियो था बच्चों, उसमें हमने क्वेश्चन आंसर जो है वो उस चैप्टर के कंप्लीट किए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये जो वीडियो है आपको हेल्प करेगी आपके होमवर्क को कंप्लीट करने में। आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, इफ़ यू वांट टू गेट एक्सप्लेनेशन ऑफ द वीडियो यू कैन टेक्स्ट मी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच।